Hello everyone, welcome back to Ansarkari. Today we will be covering the newspaper for 6th of January 2025. First of all, 52 villages allege forest rights violations. Tribal ministry, it tells the MP government to act. So, under the Forest Rights Act 2006, the rights of tribals and the rights of forest dwellers are recognized. There were allegations of forced relocation from the newly notified Virangana Durgavati Tiger Reserve. Also, there were allegations of the denial for the forest rights and access to the resources, forced relocation without due process, and prior information also was not provided. Lack of adherence to the Forest Rights Act and also Wildlife Protection Act provision. It showcases that how much accountability is essential for maintaining the rights of the tribals also, and there is need for compliance with the legal framework including these two acts, also for safeguarding the rights of the dwelling and the tribal committees. So local government must be involved in the process. The villagers must be consulted. There must be prior notification which must be given to the villagers, and claims of voluntary relocation are also there, and they are denying that there were none forceful evictions. So a survey must be done and the government must engage at the local level so that we can see what the whole scenario is and what are the real problems on the ground level. So Vandhan Yojana is there, National Tiger Conservation Authority is there. Also, tribal sub plan where we are focusing on the socio and economic aspect of the scheduled tribes through the targeted schemes. That is also here. Then next is despite a 30-year ban on the alcohol and illicit liquor smuggling and consumption, it remains a major problem in several parts of India. For example, Gadchiroli की यहाँ पे बात हो रही है, that is located in Maharashtra. It is leading to domestic abuse and also social problems, specifically related to women in the district. जैसे यहाँ पे highlight भी किया जा रहा है that the easy availability of illicit liquor and the blame game that goes on with the politician and the police keeps the alcohol abuse and the basically drug problem go on and on. So women led 1993 women led movement was also successful in implementing the ban, but the prohibition was lifted in the neighboring Chandapur, जिसकी वजह से illicit liquor trade in Gadchiroli also intensified. So ये दिखाता है कि आसपास के एरिया का भी कैसे इम्पैक्ट होता है. एंड ऑल्सो जो वुमेन लेड ग्रुप है जैसे दुर्गा बंदी समिति, वो एक्टिवली फाइट कर रहे हैं अगेंस्ट स्मगलिंग, बट उसके बाद भी रेजिस्टेंस है लोगों का, हाई कंजम्पशन रेट है. सो अवेयरनेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ का इसमें रोल आता है, मॉरल पुलिसिंग का रोल आता है. इसके साथ साथ अल्कोहल प्रोहिबिशन पॉलिसीज जैसे बहुत सारी स्टेट, गुजरात, बिहार, वहाँ पे भी कुछ स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट्स में इन्फोर्स किए जाते हैं, तो स्ट्रिक्टली इन्फोर्स करना चाहिए. इसके साथ साथ अब्यूज रिहैबिलिटेशन, जो वुमेन विक्टिम हैं इस डोमेस्टिक वायलेंस के, एंड ऑल्सो जो लोग छोड़ना चाहते हैं अल्कोहल, उनके लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर होने चाहिए फॉर द एडिक्ट्स ऑल्सो, ताकि एक इंडिविजुअल ओवरकम कर पाए उस एडिक्शन को. उसके अलावा जैसे महाराष्ट्र का एग्जाम्पल भी दिया गया है कि मुक्ति पथ कैंपेन, जहाँ पे अवेयरनेस पे फोकस किया जाता है अबाउट द हार्म्स ऑफ द अल्कोहल एंड टोबैको, कि क्या किस तरीके से वो हार्मफुल है. तो ऐसे कैंपेनिंग भी हमें लोकल लेवल पे बढ़ानी चाहिए, स्किल डेवलपमेंट करना चाहिए कि औरतों को भी एक ऑल्टरनेटिव लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी मिल पाए, ऐसे स्पेसिफिकली अल्कोहल हिट इश्यूज के साथ. देन इम्पोर्टेंट यहाँ पे बात करें कि जर्नी टू विजिबिलिटी,
माइग्रेंट वर्कर्स जो कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं in search of a better life, in search of a better quality of life, for economic opportunities. सीजनल एंड सर्कुलर होता है प्राइमरीली, बट बहुत सारे चैलेंजेस ये लोग फेस करते हैं। जैसे कई बार डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता, कई बार दे आर विक्टिम्स ऑफ ट्रैफिकिंग, देयर इज पुअर एक्सेसिबिलिटी टू पब्लिक सर्विसेज फॉर देम। इसके अलावा बहुत सारे वर्कर्स हैं जिनको सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में वो इंक्लूड ही नहीं हो पाते हैं, बिकॉज डॉक्यूमेंटेशन नहीं है उनके पास, जैसे आधार कार्ड, राशन कार्ड, या फिर मोबाइल नंबर उनका लिंक नहीं है जैसे आधार कार्ड से। तो ई श्रम पोर्टल का क्या रोल है यहाँ पे? ई श्रम पोर्टल जिसको 2021 में लॉन्च किया गया था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट टू क्रिएट अ नेशनल डेटाबेस फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। तो ये जो सेक्शन है अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स का, दैट आर हैविंग द जर्नी टू विजिबिलिटी, कैसे उनको विजिबिलिटी मिलेगी, उसमें ई श्रम पोर्टल का रोल होता है। क्योंकि ये लार्जेस्ट डेटाबेस है ग्लोबली, जो कि बेसिकली एक रजिस्ट्रेशन ड्राइव भी अभी लेके चल रहा है कि कैसे सोशल बेनिफिट्स जो हैं, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स हैं, उनके साथ हम इंटीग्रेट कर सकते हैं अनऑर्गेनाइज वर्कर्स को भी। सो आउट ऑफ 286 मिलियन registrants, 80 million migrant workers, they were excluded from essential welfare benefits जैसे कि राशन कार्ड, फूड सिक्योरिटी। सो ये वन स्टॉप सोल्यूशन की तरह काम करता है एंड बेसिकली ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स को इंटीग्रेट करे सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के साथ, ताकि उनको पेंशन मिल पाए, इंश्योरेंस मिल पाए, उनके हेल्थ एंड हाउसिंग से रिलेटेड उनको सपोर्ट मिल पाए। तो वन नेशन वन राशन कार्ड ऐसे स्कीम्स जो हैं उनके साथ लिंक किया जा रहा है, जैसे पीएम श्रम योगी मन धन है, इसके अलावा मनरेगा है। तो इन सारी वेलफेयर स्कीम्स के साथ लिंक करने के लिए एक वन स्टॉप सोल्यूशन की तरह वर्क करता है ई श्रम पोर्टल। एंड इसमें इंपॉर्टेंट डेटा भी दिया गया है दैट 53%, मतलब 50% से ऊपर जो ई श्रम के पोर्टल में लोगों ने रजिस्टर किया है, दे आर फीमेल वर्कर्स। तो हाईलाइट करता है कि कितना नीड भी है जेंडर सेंसिटिव अप्रोच को लेके चलना सोशल सिक्योरिटी के अंदर। तो ये जो प्रॉब्लम है, जो विजिबिलिटी की जगह कहीं ना कहीं हिडन रह जाती है, एक्सक्लूडेड रह जाते हैं अनऑर्गेनाइज्ड माइग्रेंट वर्कर्स, तो उनके लिए वन स्टॉप सोल्यूशन की तरह काम करता है एंड बेसिकली पोर्टेबिलिटी को इंश्योर करता है स्पेसिफिकली फॉर द इंटर स्टेट माइग्रेंट्स। देन नेक्स्ट, पीएम मोदी wants to make India विकसित by 2047। जो कुछ की इश्यूज भी हैं जो यहाँ पे हाईलाइट किए गए कि किन किन चीज़ों में हमें काम करने की ज़रूरत है। अनलेस द फार्मर्स एंड फार्म वर्कर्स इनकम इम्प्रूव, क्लाइमेट चेंज भी साथ साथ में बढ़ते जा रहा है। फ्रीक्वेंसी ऑफ हीट वेव, साइक्लोन बढ़ती जा रही हैं, जो कि एग्रीकल्चरल सेक्टर, लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज, हर चीज़ को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। जैसे कि 2024 में भी हमने देखा कि वार्मेस्ट ईयर था, तो क्रॉप प्रोडक्टिविटी को भी इम्पैक्ट किया, स्पेसिफिकली वीट जिसकी बात करते हैं, यील्ड में रिडक्शन हमने देखा 5% तक। सो उसके लिए हम क्लाइमेट रेजिलिएंट वैरायटीज लेके आ रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, जिससे जो यील्ड है उसको हम मेंटेन कर पाए। इकोनॉमिक चैलेंजेस भी हैं, जैसे इन्फ्लेशन हो जाना इन दी वेजिटेबल्स एंड एसेंशियल क्रॉप जैसे कि पोटैटो। तो उसकी वजह से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी डिसबैलेंस होती है। जो रियल वेज होती है फार्मर्स की रूरल एरियाज में स्पेसिफिकली, तो वो कहीं ना कहीं स्टैग्नेंट रहती है या फिर डिक्लाइन देखा गया है उसमें लास्ट 5 साल में। सो ये दिखाता है कि रियल वेजेस को फार्मर्स तक पहुंचाना कितना ज्यादा जरूरी है, एंड उसमें रोल हो भी सकता है जो हम बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर के लिए यूनिफाइड फ्रेमवर्क बनाने की। पॉलिसी गैप्स को और फ्रीबीज के जो चैलेंजेस होते हैं उसको भी हम एड्रेस कर पाएंगे। ओवर रिलायंस कई बार हो जाता है ऑन दी सब्सिडी, जैसे कि फर्टिलाइजर के लिए वेलफेयर प्रोग्राम से रिलेटेड। तो इन 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 एफिशिएंसीज और डिपेंडेंसी की वजह से ओवर रिलायंस कहीं ना कहीं होता है, तो उसको भी कम करना जरूरी है। फोकस किया गया है यहाँ पे फ्री बी कल्चर के ऊपर भी। बट क्या फ्री बी कल्चर
हम डायरेक्टली बोल सकते हैं गलत है फॉर द मार्जिनलाइज सेक्शन स्पेसिफिकली। तो बोला गया है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो कि डाइल्यूट करते हैं रिसोर्सेज को एंड उनको हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ यूज करना चाहिए। तो सब्सिडीज को रैशनलाइज करना कर सकते हैं हम, जो फर्टिलाइजर सब्सिडीज हैं उनको हम मर्ज कर सकते हैं विद द पीएम किसान स्कीम, ताकि हम डायरेक्ट बेनिफिट प्रोवाइड कर पाए फार्मर्स को ऑन अ पर हेक्टेयर बेसिस, जैसे यहाँ पे रिकमेंड भी किया गया है। इसके अलावा फर्टिलाइजर प्राइसेस को डीरेगुलेट कर सकते हैं, जो ओवर यूज ऑफ रिसोर्सेज है वो भी फिर हम अवॉइड कर पाएंगे। मनरेगा जैसे स्कीम्स को हम सिंक्रोनाइज कर सकते हैं विद द एग्रीकल्चरल वर्क। और भी जैसे स्कीम है जैसे जो कि रूरल एम्पावरमेंट, रूरल एम्प्लॉयमेंट को बढ़ा सकती हैं, जैसे कि पीएम आवास योजना। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इन्वेस्टमेंट भी हमें बढ़ाना चाहिए, जिसकी वजह से जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज को हम प्रमोट कर पाए। फॉर एग्जांपल वाटर, ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन ओवरली होता है, उस पर डिपेंडेंट होते हैं, तो उसके लिए वाटर हार्वेस्टिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। इसके अलावा एग्रीकल्चरल मार्केट जो है उन पे उनमें अपग्रेडेशन होना चाहिए, टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन होना चाहिए। एंड साथ ही साथ जो विमेन का रोल है वो भी इस पूरे एस्पेक्ट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एंड उनका भी एम्पावरमेंट होना चाहिए। तो सॉइल हेल्थ कार्ड है हमारे पास, वन नेशन वन फर्टिलाइजर इनिशिएटिव की भी हम बात कर रहे हैं। हमने थोड़े दिन पहले ई नाम की बात की थी, जो आपकी ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी फॉर द फार्मर्स प्रोवाइड करे वाया डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो ऐसी जो प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन है, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है, जिसके थ्रू हम क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, जो वाटर यूज एफिशिएंसी है उसको मेंटेन करने की बात करते हैं। तो इन सारे गोल्स को अलाइन करना एंड इंटरलिंक करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। देन नेक्स्ट, द आउटलुक फॉर इंडिया इन द ईयर अहेड। सो ग्लोबल अनसर्टेनिटी है, यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, गाजा कन्फ्लिक्ट हम देख रहे हैं, दे आर स्टिल ऑन गोइंग, जिनका इम्पैक्ट ना कि सिर्फ रीजनल है बट बल्कि ग्लोबल है। इसके साथ इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट आया है एंड इंडिया बेसिकली कैसे सस्टेन कर रहा है इस पूरे ही सिनेरियो के अंदर। सो इंडिया रिमेन्स अ स्टेबल प्लेयर इवन आफ्टर द ग्लोबल अनसर्टेनिटीज। 2025 में बोला जा रहा है कि इट विल बी ब्रिंगिंग न्यू चैलेंजेस एंड ऑल्सो न्यू अपॉर्चुनिटीज। फॉर एग्जाम्पल इंडिया एंड चाइना रिलेशनशिप, disengagement talks are ongoing for LAC, line of actual control, and meetings are also being held between the Indian and Chinese leadership. बट क्या अभी हम रिजॉल्व कर चुके हैं डिस्प्यूट को? तो अभी रिजॉल्व नहीं कर पाए हैं हम। Dialogue is still going on. China is also increasing its influence globally, specifically in the global south, in South Asia. तो वो भी एक चैलेंज की तरह इमर्ज हो रहा है फॉर इंडिया। साउथ एशिया की भी डायनेमिक की बात करते हैं तो इंडिया फोकस करता है ऑन नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, बट उसके साथ म्यांमार, बांग्लादेश, इवन मॉलडीव्स के साथ हमने देखा कि चैलेंजेस इंडिया ने फेस किए इन द रिलेशनशिप। तो कोलैप्स ऑफ ऑल्सो असद रिजीम इन सीरिया, तो वेस्ट एशिया के अंदर भी हमने देखा कि जियो पॉलिटिकल शिफ्ट हो रहे हैं, वो भी इंडिया के रिलेशन को इन विद द रीजन इम्पैक्ट करेंगे। ईरानियन एंड शिया इन्फ्लुएंस जो कि डिक्लाइन हो रहा है, इट में ऑल्सो डीस्टेबलाइज द ट्रेडिशनल पावर डायनेमिक्स, जैसे कि इसराइल, टर्की, दे आर गेनिंग स्ट्रैटेजिकली मोर इन्फ्लुएंस ओवर द रीजन। सो ऑल्सो इसके साथ इंटरलिंक्ड है दी साइबर क्राइम, जो कि ट्रांसनेशनल इन नेचर होते हैं, ट्रांस कॉन्टिनेंटल होते हैं, दे आर ऑल्सो राइजिंग, दे आर इम्पैक्टिंग द इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर, द बिजनेसेस, ऑल्सो द सेंसिटिव गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। सो डिप्लोमेटिक एफर्ट स्ट्रेंथन करना बहुत ज्यादा इसेंशियल है विद दी साउथ एशिया एंड ऑल्सो वेस्ट एशिया, जो कि पीएम मोदी की रीसेंट विजिट्स में भी हमें हाईलाइट हुआ। उसके साथ सेंसिटिव इंफ्रास्ट्रक्चर को सेफ रखना एंड काउंटर करना डिजिटल थ्रेट्स को बिकम्स इम्पोर्टेंट। साथ ही साथ क्लियर पॉलिसीज होना चाहिए, क्लियर फ्रेमवर्क होना चाहिए टू navigate such strategic partnerships. Then symbolism must not become misplaced showmanship. तो सिंबल
भी एक इसेंशियल रोल प्ले करता है आपकी आइडेंटिटी को फोस्टर करने के लिए, आपका डायरेक्शन को बेसिकली बताने के लिए। बट यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है कि कंट्रोवर्सी ओवर 1971 वॉर, एक पेंटिंग जो कि डिपिक्ट करती है द सरेंडर ऑफ पाकिस्तानी ट्रूप्स इन 1971 वॉर, इट वाज रिमूव फ्रॉम आर्मी चीफ्स ऑफिस। सो जो पेंटिंग है वो सिंबलाइज कर रही थी दैट India's finest military are, and it served as a reminder of its military and political competency. तो हिस्टोरिकल एंड कल्चरल सिंबलिज्म की यहाँ पे बात की जा रही है, इफेक्टिव सिंबलिज्म। बट क्या वो इनअप्रोप्रिएट सिंबलिज्म है? जैसे क्वेश्चन उठाया जा रहा है ऑन द शिवाजी स्टैचू ऑन पैंगोंग तिएसो लेक, इज इट डाइल्यूटिंग द लोकल हेरिटेज, या हमें वहाँ के लोकल हेरिटेज के अकॉर्डिंग इंकरेजमेंट करना चाहिए? सो प्रिजर्व करना भी जरूरी है, ऑफ द प्रिजर्वेशन ऑफ द हिस्टोरिकल सिंबल्स इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, बट क्या वो अप्रोप्रिएट है? एंड जो सिंबॉलिक जेस्चर है क्या वो अलाइन करता है विद द कल्चरल रेलेवेंस इन द लोकल हिस्ट्री? सो सिंबलिज्म का यूज बहुत ज्यादा इसेंशियल होता है, बट वो काफी ज्यादा थॉटफुल भी होना चाहिए, ताकि उसको यूज करके हम यूनिटी, आइडेंटिटी, हमारी डाइवर्सिटी को इंटीग्रेट कर पाए। सो कल्चरल डिप्लोमेसी का भी एक एग्जाम्पल हो जाता है सिंबलिज्म। The next textile clusters receiving higher inquiries, and also the Bangladesh crisis is going on. So it is having economic and political crisis, political impacts in the Bangladesh, जिसकी वजह से जो टेक्सटाइल सेक्टर है वो भी कहीं ना कहीं इम्बैलेंस हुआ है। सो इंडियन टेक्सटाइल क्लस्टर, क्या उसको इम्पैक्ट हो रहा है फ्रॉम दी बांग्लादेश क्राइसिस, जिसकी वजह से इंपोर्ट ऑफ कॉटन एंड फैब्रिक वो कहीं ना कहीं रिड्यूस हुआ है। तो इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए ये गैप फिल करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कैप्चरिंग जस्ट 10% ऑफ द बांग्लादेश ग्लोबल textile exports, it could generate 5 million direct and 1 million indirect jobs. So India has the potential to attract the investments diverted from the Bangladesh and the other countries such as Vietnam and Cambodia. बट उसके बावजूद भी चैलेंजेस हैं, जैसे कि ईज ऑफ बिजनेस प्रोवाइड करना। क्या हमारे पास एडवांस्ड टेक्सटाइल मशीनरी है जो कि बांग्लादेश में यूज की जाती है? जो हाई इम्पोर्ट ड्यूटीज हैं उनके साथ जो चैलेंजेस क्रिएट होते हैं विद द अदर अफोर्डेबल ऑप्शंस लाइक वियतनाम एंड कंबोडिया, उनको कैसे हम टैकल करेंगे? सो प्रोडक्शन, पीएलआई का भी इसमें इंपॉर्टेंट रोल आता है। पीएलआई 2.0 फॉर टेक्सटाइल की भी बात की जा रही है, जिसमें माइक्रो इंडस्ट्रीज को इंक्लूड करना चाहिए। इसके साथ साथ जो इन्वेस्टमेंट है डिफरेंट स्केल्स पे, डिफरेंट लेवल्स पे, उसको इनकरेज करना चाहिए। भारत टेक्स की यहाँ पे बात की जा रही है, भारत टेक्स 2024, जो कि एक इम्पॉर्टेंट इवेंट की तरह इमर्ज हुआ है एंड डेमोन्स्ट्रेट करता है कि इंडिया इज ग्रोइंग इट्स प्रेजेंस इन द ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स। बट उसके साथ सस्टेनेबिलिटी, टेक्नोलॉजी एंड ऑल्सो इंसेंटिव, क्या इन तीनों का मिक्सचर हम प्रोवाइड कर पा रहे हैं इस पूरे सेक्टर को, ताकि ईज ऑफ बिजनेस एंड ग्लोबल कंपटीशन के साथ हम डील कर पाए? तो इंडियन ब्रांड्स के लिए जरूरी है कि वो फोकस करें ऑन एनहांसिंग देयर ऑपरेशनल एफिशिएंसी, साथ ही साथ सस्टेनेबिलिटी, ताकि वो कॉम्पिटिटिव एज को रिटेन कर पाए। बहुत सारी स्कीम्स भी हैं, जैसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी हैं बहुत सारे कंट्रीज के साथ जो कि नेगोशिएट कर रहा है इंडिया, फॉर एग्जांपल ईयू, यूके, ताकि इस कॉस्ट डिसएडवांटेज को ब्रिज किया जा सके फॉर द इंडियन एक्सपोर्टर्स। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्रमोट कर रहे हैं, सस्टेनेबिलिटी को हम प्रमोट कर रहे हैं, ईएसजी कंप्लायंस के ऊपर फोकस कर रहे हैं। इसके साथ नेशनल नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन, जिसमें हम प्रमोट करें दी यूज एंड प्रोडक्शन ऑफ टेक्निकल टेक्सटाइल्स, ताकि स्पेशलाइजेशन नीश के अंदर भी हम री कर पाए अपनी पोजीशन। देन ओडिशा gears up to host the world's
to host the World Pravasi Bharatiya Divas Convention. So 18th होगा, which will be held in Bhubaneswar, Odisha, and it commemorates Mahatma Gandhi's return to India in 1915, and साथ ही साथ हम इंडियन डायस्पोरा को भी सेलिब्रेट करते हैं. 35.4 million Indian diaspora is there, and different fields, different aspect में उनका contribution रहा है. They act as a living bridge. More than 7,000 delegates will be participating, and also 27 members. So basically दिखाता है कि कैसे कनेक्शन हम फोस्टर कर रहे हैं विद डायस्पोरा, एंड साथ ही साथ डेवलप्ड इंडिया, जो विकसित भारत का हमारा विजन है, उसको भी हम प्रमोट कर रहे हैं. हम्म. तो यहाँ पे एनआरआई भी मेंशन किया गया है, एंड पीआईओ भी मेंशन किया गया है. सो एनआरआई हम बोलते हैं नॉन रेजिडेंट इंडियन, एंड एनआरआई को एक इंडियन सिटीजन ही हम कंसिडर करते हैं, बट वो इंडिया के बाहर रह रहे हैं. पीआईओ, दैट इज पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, उनको हम कंसिडर करते हैं फॉरेन नेशनल है, बट उनकी इंडियन एंसेस्ट्री है. सो एनआरआईज कैन वोट इन इंडियन इलेक्शंस, बट पीआईओज कैन नॉट. इसके साथ साथ कुछ और भी राइट्स है जो एनआरआई, क्योंकि उसको इंडियन सिटीजन ही माना जाता है, तो उनके लिए राइट्स काफी ज्यादा होती हैं, एंड पीआईओ के लिए कंपैरेटिवली नहीं होती हैं उतनी. पीआईओ के पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो होते हैं, दे नीड अ वैलिड इंडियन वीजा टू विजिट इंडिया, बट एनआरआई को उसकी जरूरत नहीं होती है. एनआरआई कैन ऑल्सो होल्ड द पब्लिक ऑफिस, बट पीआईओज कैन नॉट. एम्प्लॉयमेंट वीजा चाहिए होगा पीआईओ को इंडिया के अंदर वर्क करने के लिए, बट एनआरआई, they do not even need permission to visit restricted places in India. तो क्योंकि उनको कंसिडर किया जाता है एज एन इंडियन सिटीजन, तो उनको राइट्स भी ज्यादा दी जाती हैं. इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछा गया था इन पीटी प्रीलिम्स. Then India needs to prioritize preventive care. सो प्रिवेंशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, स्पेसिफिकली फॉर द नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, क्योंकि उनका जो बर्डन है वो इंक्रीज होते जा रहा है. जैसे कि ओनली इन 2022 65% ऑफ डेथ was ड्यू टू नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, जैसे कि हार्ट डिजीज, डायबिटीज, स्ट्रोक या फिर कैंसर. तो अर्ली स्टेज पे डिजीजेस को कैसे हम ट्रैक कर सकते हैं, वहीं पे कैसे टैकल कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल 1 in 4 men आर हाइपर टेंसिव, जिसकी वजह से रिस्क ऑफ हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक बिकम्स मोर प्रेवलेंट. सो हेल्थ केयर एंड इकोनॉमिक बर्डन भी क्रिएट होता है, एंड ऑल्सो ह्यूमन कॉस्ट हम झेलते हैं. सो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस का इकोनॉमिक बर्डन, जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है, इट इज प्रोजेक्टेड टू एक्सीड 280 लाख करोड़ रुपीज बाय 2030. दैट इज 2 लाख रुपीज पर हाउस होल्ड. सो हेल्थ केयर कॉस्ट जो है वो बढ़ते जा रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लोअर और मिडिल इनकम फैमिलीज की सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होगी. तो प्रिवेंटिव केयर के ऊपर सबसे पहले फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है हमारे लिए, जिसमें रेगुलर स्क्रीनिंग आ जाती है. अर्ली इंटरवेंशन जरूरी है, ताकि इन इंसिडेंट्स को, ताकि वो जो डिजीजेस हैं वो एक सीरियस डिजीज में ना कन्वर्ट हो जाए, एंड सोशल बर्डन ना क्रिएट करे. अर्ली इंटरवेंशन बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है. उसके लिए एक्सेसिबल टेक्नोलॉजी का होना जरूरी है. जैसे कि एम्स के अंदर हमने देखा था कि एमआरआई करवाने के लिए 1 साल की वेटिंग है. तो क्या सच में हमारा जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एडिक्वेटली अवेलेबल है, क्या वो एक्सेसिबल है फॉर द मार्जिनलाइज सेक्शन? एंड अगर वो नहीं है तो कोई अफोर्डेबल ऑप्शन बचता है लोगों के पास? तो एवरी 1,000 इंडिविजुअल इज स्क्रीन्ड फॉर एटलीस्ट 3 हाई रिस्क केसेस. ये दिखाता है हमें कि टाइमली इंटरवेंशन कितना ज्यादा जरूरी है. सो उसके लिए R&D भी होना चाहिए. जैसे कि एमआरआई का भी एक एक्सेसिबल वर्जन की हम बात कर रहे थे रिसेंटली न्यूज,
तो कैसे हेल्थ चेक्स को कॉम्प्रिहेंसिव बना सकते हैं डिफरेंट लेवल्स पे? क्या डायरेक्टली एम्स के ऊपर ही पूरा प्रेशर आना चाहिए ऑफ द हेल्थ केयर सिस्टम, या हम टर्शरी लेवल, सेकेंडरी लेवल, प्राइमरी लेवल, डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे हेल्थ केयर सेक्टर को एक्सेसिबल एंड रिलायबल बना सकते हैं? तो इसके साथ इंसेंटिव देना भी जरूरी है फॉर द प्रिवेंटिव हेल्थ चेक्स, ताकि जो स्टैग्नेशन है एंड हेल्थ केयर इन्फ्लेशन भी है उसको भी हमें डील करना होगा। तो हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। एंड जैसे कि आज हम बात भी कर रहे थे अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स की, तो उनके लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो हाई कॉस्ट एक बहुत बड़ा चैलेंज बन के आगे आता है। अवेयरनेस नहीं होती लोगों को द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिवेंटिव केयर, जो सफिशिएंसी है एंड एक्सेसिबिलिटी है पब्लिक और प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम में, तो वो कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी है जो हमें गैप्स फिल करने होंगे। फंडिंग को लेके गैप्स हैं, जैसे स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स, हेल्थ केयर प्रोग्राम्स जो हम चलाते हैं, क्या सफिशिएंट फंडिंग हम प्रोवाइड कर रहे हैं? इसके साथ साथ एआई को कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं हम लो कॉस्ट टूल्स को बनाने में? तो वो एक R&D फैक्टर हो जाता है जिसको हम आगे आने वाले टाइम में एक्सप्लोर कर सकते हैं। So implications of China's mega dam project. So ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर ये डैम बनाया जा रहा है। ब्रह्मपुत्र रिवर जो कि यरलुंग जैंगबो नाम से जानी जाती है इन तिब्बत, जो ग्रेट बेंड की हम बात करते हैं, ग्रेट बेंड के पास बेसिकली इस एरिया में डैम को कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, जिसकी वजह से बहुत एस्पेक्ट्स में चैलेंजेस एंड क्वेश्चंस उठाए जा रहे हैं। क्योंकि ऑलरेडी भी थ्री जॉर्जेस जैसे जो बड़े डैम चाइना में लोकेटेड हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन उठाया जाता है दैट दे आर मेकिंग द होल एरिया प्रोन टू मोर अर्थक्वेक्स, इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं वो इन द जियोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ द लैंड। सो क्या सिमिलर कंसर्न यहाँ पे नहीं होंगे जब ग्रेट बेंड के ऊपर हम देखते हैं कि इतना फोर्स से वाटर आ रहा है एंड आप उसको रोक के रखेंगे, तो उसकी वजह से कुछ कंसर्न होंगे जो कि इन्वायरमेंटल होंगे, सोशल इम्पैक्ट लोगों के ऊपर आएगा जो कि डाउनस्ट्रीम रहते हैं। इसके साथ जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट में भी इश्यूज क्रिएट होंगे बिटवीन इंडिया एंड चाइना, जिनको हमें डील करना होगा। इसके साथ इंडिया एंड बांग्लादेश जो कि दोनों ही डाउनस्ट्रीम नेशंस में आ जाते हैं, उनके ऊपर डायरेक्टली इम्पैक्ट होगा। अब क्योंकि ब्रह्मपुत्र रिवर एक ट्रांस बाउंड्री रिवर है, तो क्या उसके ऊपर इतना मेजर डैम बनाने से पहले एक ट्रांस बाउंड्री कमिटी नहीं फॉर्म होनी चाहिए, इन जो कि कंस्टिट्यूट करे चार कंट्रीज को, दैट इज चाइना, इंडिया, भूटान एंड ऑल्सो बांग्लादेश? क्योंकि हर कंट्री के पास वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स प्लान्ड है, जैसे कि कोई एम्बैंकमेंट्स बना रहा है तो कोई डैम्स की प्लानिंग कर रहा है। एंड क्योंकि चाइना यहाँ पे अपस्ट्रीम नेशन के अंदर आता है, तो वो कंट्रोल कर सकता है लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स के थ्रू, जैसे कि मेडोग डैम, वो भी एक्सपेक्टेड है टू जनरेट पावर, बट इट मे ऑल्सो डिस्टर्ब द डाउनस्ट्रीम वाटर फ्लोज। जैंगमो डैम, जैंगबो डैम, तो डिफरेंट डिफरेंट डैम्स है जो कि प्लान कर रहा है चाइना ऑन दी ब्रह्मपुत्र रिवर, जिसके ना कि सिर्फ जियोपॉलिटिकल बल्कि सीवियर इन्वायरमेंटल रिस्क हो सकते हैं, जैसे कि रिवर इकोलॉजी को इम्पैक्ट आएगा। जो सेंसिटिव बायोडाइवर्सिटी है हिमालयन रीजन के अंदर, उसको हम हिमालयन बायो रीजन बोलते हैं, तो वो दिखाता है कि कितना ज्यादा सेंसिटिव ये पूरा ही एरिया है। इसकी वजह से ग्लोव के चांसेस बढ़ सकते हैं, जो कि डायरेक्टली डाउनस्ट्रीम एरियाज को इम्पैक्ट करेगा। चंगथंग डैम जो कि कोलैप्स हुआ था इन सिक्किम 2023 के अंदर, हमने देखा, वो दिखाता है कि कितना ज्यादा कैटास्ट्रॉफिक हो सकता है ऐसे डिजास्टर। तो रिस्क है कम्युनिटीज के लिए जो कि इनहिबिट करती है इन दी ब्रह्मपुत्र रिवर। एग्रेरियन कम्युनिटीज हैं, पैस्टोरल कम्युनिटीज हैं, ना कि सिर्फ इंडिया में बल्कि बांग्लादेश में भी, तो उनके ऊपर इम्पैक्ट आएगा इसकी वजह से। हो सकता है कि वाटर अवेलेबिलिटी रिड्यूस हो जाए उनके लिए फॉर द एग्रीकल्चर एंड फॉर देयर लाइवलीहुड। इंक्रीज्ड रिस्क हो सकता है ऑफ दिस एनुअल फ्लड्स ड्यू टू द ऑल्टरेशन इन द रिवर फ्लो, जिसकी वजह से सेडिमेंटेशन पैटर्न्स भी चेंज होंगे। So control over the Brahmaputra, it gives China a significant geopolitical leverage over the downstream countries.
over this bio or eco region of the Himalayas. So there is a lack, it is lacking a comprehensive water sharing treaty between India and China, जिसकी वजह से tensions और ज्यादा increase होने वाले हैं आगे आने वाले time में, and cooperation दोनों countries के बीच में होना difficult होता जाएगा if we are not promoting dialogue and if we are not forming the treaty. So क्या कर सकते हैं हम? तो कंट्रीज को वर्क करना चाहिए सबसे पहले तो एक स्पेसिफिक एग्रीमेंट के थ्रू, जैसे कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन नॉन नेविगेशनल यूज ऑफ इंटरनेशनल वाटर कोर्स, जो कि हाईलाइट भी किया गया है यहाँ पे 1997 में, जो कि चाइना एंड इंडिया ने साइन नहीं किया है. सो बायलेटरल मैकेनिज्म जो है, जो एक्सपर्ट कमिटीज है, उनका सेटअप होना बहुत जरूरी है. डेटा कलेक्शन होना बहुत जरूरी है ताकि हम रिस्क को प्रिडिक्ट कर पाए कि किस लेवल तक रिस्क इम्पोज करता है ये पूरा प्रोजेक्ट. इसके साथ साथ ऑल्टरनेटिव स्ट्रैटेजी इंडिया के पास होनी चाहिए. क्या इको फ्रेंडली सोल्यूशन हम लेके आ सकते हैं वाटर कंजर्वेशन या डिजास्टर मैनेजमेंट के उस पूरे रीजन के अंदर? टेक्नोलॉजी को हम कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं रिवर फ्लो चेंजेस को मैनेज करने के लिए? उसके साथ साथ जो पूरा हिमालयन रीजन हो जाता है, बायो रीजन हो जाता है, वहां पे स्पेसिफिक क्लाइमेट चेंज की वजह से भी इम्पैक्ट बढ़ते जा रहा है. फॉर एग्जाम्पल, जो ग्लेशियर मेल्टिंग है वो बढ़ते जा रहा है, जो क्रायोस्फेयर है वो फ्रिजाइल होते जा रहा है. तो उसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी ऑफ हिमालयन रीजन इज ऑल्सो इम्पैक्टेड, एंड ऐसे आर्टिफिशियल डैम्स की वजह से जो नेचुरल रिवर साइकिल है वो भी इम्पैक्ट होगा. तो ये दिखाता है कि कितना वास्ट एक्सटेंट तक इसका इम्पैक्ट होने वाला है. एवियन फ्लू लेपर्ड्स में देखा गया. H5N1 जिसको हम बोलते हैं, जो कि हाईली कंटेजियस होता है, वायरल डिजीज है विद दी जूनोटिक रैमिफिकेशंस. रेयर इंस्टेंस देखा गया जहाँ पे जो वायरस है अफेक्ट कर रहा है वाइल्ड लाइफ को. सो एडवाइजरी भी दिया गया है दैट सिम्टम्स जो भी एनिमल्स रिपोर्ट कर रहे हैं उनको मॉनिटर करना जरूरी है, एंड कैप्टिवेट कुछ टाइम के लिए करना जरूरी है विद इसेंशियल चीजें उनको प्रोवाइड करते करते. तो चंदापुर जो अफेक्टेड एनिमल्स हैं इनको रीलोकेट किया था यहाँ पे चंद्रापुर में, फ्रॉम चंद्रापुर, क्योंकि ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो बढ़ते जा रहे थे एंड दे वर डिस्प्लेइंग द सिम्टम्स ऑफ इल हेल्थ. सो प्रिवेंटिव मेजर लिया गया है फॉर द वाइल्ड लाइफ यहाँ पे, एंड एक प्रॉपर एक्शन प्लान को इम्प्लीमेंट करने की बात हो रही है फॉर प्रिवेंशन, कंट्रोल एंड कंटामिनेशन. सो सर्विलेंस को इनहांस किया जाएगा अमंग द एनिमल्स ताकि मिटिगेट कर पाए हम इन रिस्क को. देन एंटी कन्वर्जन लॉ अरुणाचल could now in Arunachal could now be enforced. So Arunachal Pradesh Freedom of Religion Act 1978, जिसको एंटी कन्वर्जन लॉ बोला जा रहा है, it prohibits religious conversions by force, fraudulent methods with penalties are included, and also imprisonment and fines are included. So जो law है it remains a dormant, क्योंकि जो enactment है it is lacking the implementation of the laws. So cultural and religious context में भी बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश जो है it is having diverse ethnic communities. It is home to a number of different small ethnic communities with having different arrays of beliefs and practices. जैसे दोनी पोलो, बुद्धिज्म, animistic traditions. So different indigenous faith हैं. Christianity also entered अरुणाचल प्रदेश in 1950s. उसके बाद रैपिडली ग्रोथ देखी गई विद द क्रिश्चियंस कॉन्स्टिट्यूटिंग 30% ऑफ द पॉपुलेशन 2011 सेंसस के अंदर. सो डिबेट भी है अराउंड द कन्वर्जन्स एंड परसीव्ड थ्रेट हो सकता है टू द डाइवर्सिटी ऑफ द इंडिजिनस रिलीजन दैट कुड आल्सो लीड टू कॉल्स फॉर एनफोर्सिंग द लॉ.
सो क्यों फोकस रिन्यू होते जा रहा है ऑन द इन्फोर्समेंट? तो 2022 में पीएलआई फाइल किया गया गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंदर, जो कि जिसमें डिमांड किया गया फॉर फ्रेमिंग ऑफ रूल्स फॉर द एक्ट्स इम्प्लीमेंटेशन। एक्ट तो हम बना चुके हैं, बट रूल्स जब तक नहीं बनते उसके बाद ही इम्प्लीमेंट किया जाता है उस एक्ट को। तो जो कोर्ट है, इट डायरेक्टेड द अरुणाचल गवर्नमेंट टू फाइनलाइज द रूल्स विद इन 6 मंथ्स, एंड उसी की वजह से फिर रिवाइव किया जाएगा इन्फोर्समेंट को। तो ये भी बोला जा रहा है दैट जो लॉ है, इट इज एसेंशियल इन प्रिजर्विंग द इंडिजिनस फेथ। कल्चरल आइडेंटिटी जो है वो प्रिजर्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है, एंड कन्वर्जन्स को एक एलिनेटिंग ट्रेडिशनल प्रैक्टिस की तरह डिस्क्राइब किया जा रहा है यहाँ पे। साथ ही साथ जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है वो क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं इस एक्ट को, एंड दे आर कॉलिंग इट एज डिस्क्रिमिनेटरी। एंड क्योंकि बहुत कुछ एस्पेक्ट्स में वेग है एक्ट, उसकी वजह से बोला जा रहा है कि इट कैन ऑल्सो बी इजिली मिसयूज्ड। सो टेंशन बेसिकली हम देख सकते हैं यहाँ पे बिटवीन द फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड ऑल्सो द कल्चरल प्रिजर्वेशन, एंड जो पोटेंशियल मिसयूज हो सकता है ऑफ द लॉ by the authorities or by the community itself. So there is lack of consensus among the religious groups and the stakeholders here. So एक क्लियर और ट्रांसपेरेंट रूल्स का सबसे पहले होना जरूरी है, ताकि मिस यूज को आप प्रिवेंट कर पाए, इंश्योर कर पाए फेयरनेस को, एंड साथ ही जो इंटरफेथ डायलॉग है उसमें हमें हारमनी को बढ़ाना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए इंटरफेथ डायलॉग को अक्रॉस ऑल द कम्युनिटीज, ऑल द एथनिक ग्रुप्स. So there must be a balance between protecting the indigenous cultures with the individual freedom. So Stalin, जो कि तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं, they are offering $1 million prize for decoding the Indus Valley script to solve 100-year-old mystery surrounding the script, जो कि हम इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, that was excavated from Mohenjo-daro site. So they are supporting for research, एंड बेसिकली हमारा जो कल्चर है, हमारा हेरिटेज है, उसके बारे में हमें बताएगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस रिसर्च सेंटर भी है, चेन्नई में बेस्ड है, जो कि इस पूरे इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। सो रिसर्च एंड इनोवेशन को हम प्रमोट करें, एंड ऑल्सो एडवांसिंग दी हिस्टोरिकल एंड आर्कियोलॉजिकल रिसर्च। देन पीएम्स ट्रिप टू पेरिस, ahead the trip to Paris of the Indian Prime Minister, Rafael Scorpine deals are reaching their final stage. तो दो मेजर डिफेंस एग्रीमेंट्स फ्रांस के साथ हम देख रहे हैं, वर्थ ओवर $10 billion, जो कि फाइनलाइज हो रहे हैं। एक तो राफेल एम फाइटर जेट्स को लेके फॉर द इंडियन नेवी एयरक्राफ्ट कैरियर्स, साथ ही साथ एडिशनल स्कॉर्पिन क्लास कन्वेंशनल सबमरीन्स भी। रिसेंटली भी हमने सबमरीन के बारे में न्यूज पढ़ी थी विद द इंडिया एंड फ्रांस पार्टनरशिप। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट, जो कि होस्ट किया जाएगा बाय द फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन, वो विजिट करेंगे एंड अटेंड करेंगे पीएम मोदी, एंड पूरे ही ग्लोबल लेवल पे जो एआई सेक्टर में एडवांसमेंट है उसके बारे में बातचीत की जाएगी। ऑल्सो जो स्कॉर्पिन सबमरीन ऑर्डर है, इट विल बी बिल्ड बाय मैज़ेगन डॉक शिप बिल्डर्स इन पार्टनरशिप विद द नेवल ग्रुप ऑफ फ्रांस। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है रिगार्डिंग इंडिया एंड फ्रांस रिलेशनशिप। कैल्शियम इंटेक, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज, अवॉइडेंस ऑफ स्मोकिंग, एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन, तो ऑस्टियोपोरोसिस को प्रिवेंट करने के लिए सारे स्टेप्स लेना जरूरी है। हम्म सो ऑस्टियोपोरोसिस इज अ कंडीशन जो कि बोन्स को वीक बनाती है एंड ब्रिटल बनाती है,
एंड जो बॉडी है इट कॉन्स्टेंटली एब्जॉर्ब्स एंड रीप्लेसेस द बोन टिश्यू, जिसकी वजह से न्यू न्यू बोन टिश्यू का क्रिएशन होते रहता है। इट ऑल्सो बिगिंस विद द चाइल्डहुड एंड ओल्ड एज तक रहता है। जो भी डाइट इज लो इन कैल्शियम एंड विटामिन डी, इट कैन इंक्रीज योर रिस्क ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस एंड हैविंग मोर फ्रैक्चर्स। तो ये भी दिखाता है कि एक्सेसिव डाइटिंग या फिर पुअर प्रोटीन इनटेक जो है वो कैसे बोन लॉस में भी इम्पैक्ट करता है। तो प्रोटीन डेफिशिएंसी भी इसके साथ कहीं ना कहीं लिंक्ड है। जो रीसेंट चैलेंज हमने देखा था विद द अंडर न्यूट्रिशन वर्सेस ओवर न्यूट्रिशन, वो भी हम यहाँ पे जोड़ सकते हैं। To disrupted bone restoration, remodeling. It could also lead to bone loss. The risk factors includes age, gender, low body weight, smoking, consuming alcohol, या फिर आपकी फैमिली हिस्ट्री रही है, आपके जीन्स में है। सो ट्रीटमेंट ऑप्शंस की यहाँ पे बेसिकली बात की जा रही है। तो सेडेंट्री लाइफस्टाइल, जो इंक्रीज्ड स्क्रीन टाइम है जिसकी वजह से फिजिकल एक्टिविटी हमारी लिमिट हो जाती है एंड कैल्शियम इंटेक भी हम कम लेते हैं। तो वो कुछ मॉडर्न चैलेंजेस हैं जो कि ग्लोबलाइजेशन के साथ हम देख रहे हैं ह्यूमन हेल्थ के ऊपर। उसके लिए जरूरी है कि सप्लीमेंट्स को इंक्लूड करना हमारी डाइट में, हेल्थ अवेयरनेस करना रिगार्डिंग द इम्पैक्ट्स एंड द लॉन्ग टर्म रिस्क्स। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग अ कैंसल कोल केस इन साउथ अफ्रीकन कोर्ट। So 2019 में जो गवर्नमेंट थी ऑफ साउथ अफ्रीका, इट अनाउंस्ड इट्स प्लान टू add 1500 megawatts of coal power to its national grid. It was supported by ministers. So basically civil action, youth led civil organization जो हैं साउथ अफ्रीका की, उन्होंने लॉ सूट फाइल किया है against the coal expansion plans and they are urging that the expansion will be harming the environment, it will be worsening the climate change, it will be impacting the public health and the children also. But then what about the basic amenities which the government has to provide to the citizens? What about the basic amenities like electricity? So सिर्फ ट्रांजिशन के बारे में एग्रीमेंट इन डिस्कशन करना इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट to actually start the process at the ground level। जैसा कि अलग नेशंस में भी हमने देखा जहाँ पे एनर्जी डिमांड जो है इट इज इंक्रीजिंग। सो एनर्जी डिमांड्स को मीट करना coupled up with the transition efforts, it becomes very challenging, especially for the developing nations। सो इन्वायरमेंटल जस्टिस का रोल आता है इसके अंदर, ट्रांजिशन टू रिन्यूएबल एनर्जी, क्लाइमेट फाइनेंसिंग, पेरिस एग्रीमेंट कैसे पब्लिक हेल्थ को भी इम्प्रूव करे, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इम्प्रूव करें। ऑल्सो साउथ एशिया इज द वर्ल्ड 16th लार्जेस्ट एमिटर ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस। तो ग्लोबल साउथ में जो एनर्जी मिक्स है, हाउ इट विल बी सपोर्टेड विद द climate financing goals and initiatives, that becomes important। Ketan Parekh, The Dark Side of Market, from using Harsh Mehta's broker, banker, promoter template to front running। So controversial stock broker रहे हैं from the early 2000s and he remains involved in the market manipulation despite legal action भी लिया जा चुका है उनके ऊपर। So insider information को exploit करने के basically allegation है उनके ऊपर for illegal profit in the traders which are linked to major US backed fund houses, securities regulators, wrongful gain in the trading। सो K10 स्टॉक्स जिनके अंदर मैनिपुलेट उन्होंने किया। इसके अलावा कंपैरिजन भी किया जा रहा है यूएस के साथ, जहाँ पे इंडिविजुअल जैसे बर्नी मैडॉफ देखा गया दैट दे फेस्ड स्विफ्ट जस्टिस, बट इंडिया के केस में कंपैरिजन में देखा जा रहा है दैट देयर आर रेगुलेटरी डिलेज which have allowed Parekh to remain active in the market even now।
So direct benefit transfer, government has disbursed 4.15 lakh crores rupees in the subsidies and benefits through DBT so far in financial year 25. So it includes cash transfers to the Aadhaar linked accounts, साथ ही साथ सब्सिडीज जो फूड के लिए, फर्टिलाइजर के लिए एंड एलपीजी के लिए प्रोवाइड करते हैं. So more than 1 lakh crore rupees for fertilizers, more than 1 lakh crore rupees for food grains, 52,000 crore से भी ज्यादा for the मनरेगा. So total financial year 25 DBT is projected to be slightly lower than the financial year 24's, that is 6.91 lakh crore rupees. So DBT has saved 3.5 lakh crore rupees in financial year 2015 क्योंकि लीकेजेस को हमने रिड्यूस किया है एंड इंश्योर किया है कि डायरेक्ट ट्रांसफर होगा टू द बेनिफिशियरीज. मोर देन 1.68 billion beneficiaries are registered under the DBT scheme that are getting the benefits and कहीं ना कहीं उनकी स्पेंडिंग क्वालिटी भी इम्प्रूव हुई है, फाइनेंशियल सेविंग इम्प्रूव हुई है, which has also allowed the government to provide additional welfare benefits. तो जो स्पेंडिंग क्वालिटी एंड फाइनेंशियल सेविंग है वो दोनों ही गवर्नमेंट ने इम्प्रूव किया, यहाँ पे हमें दिख भी रहा है. सो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो है दे आर अ टूल फॉर इफेक्टिव गवर्नेंस, करप्शन रिड्यूस करने के लिए, लीकेजेस को रिड्यूस करने के लिए एंड बेटर वेलफेयर डिलीवरी के लिए दे बिकम वेरी इंपॉर्टेंट. PLI schemes, how they are aiding import substitutions for MSMEs. They have generated 1.46 lakh crore rupees in investment in boosting these sectors जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर, टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स, फार्मास्यूटिकल, फूड प्रोसेसिंग, टेलीकॉम प्रोडक्ट्स. So MSME, they have also been benefited as manufacturers and contractors in various industries जिसमें large corporations हैं. मैन्युफैक्चरिंग के लोकलाइजेशन की बात करें हम, मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट्स की, बैटरीज हैं, कैमरा मॉड्यूल है, ड्रोन है, इनका भी एक्सपोर्ट जो है वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है. मोबाइल फोन का एक्सपोर्ट्स बढ़ते जा रहा है बाय 260% बिटवीन 2020 टू 2022. एप्लीकेशंस भी हम देख सकते हैं डिफरेंट सेक्टर्स में कितने लेवल पे इम्प्रूव किए जा रहे हैं. इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है. तो PLI स्कीम बेसिकली इंपोर्ट के ऊपर कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी को रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं, कॉम्पिटिटिवनेस एज को भी रिटेन करने में हेल्प करते हैं एंड जॉब क्रिएशन भी होता है डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली अक्रॉस द इंडस्ट्रीज. एंड MSMEs का इंटीग्रेशन भी हम कर पा रहे हैं विद द हाई वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग चेन्स, तो वो भी इम्पोर्टेंट है पूरे इकोनॉमिक इकोसिस्टम के लिए. Then why housing and urbanization are key to India's growth story? So urban infrastructure heart basically है for the economic trajectory of India, economic growth of India. Housing जो है that is also central to India's GDP growth. Urbanization जो है it also drives the demand जो कि डिफरेंट सेक्टर से लिंक्ड है, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, कंस्ट्रक्शन सर्विसेज, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, पर्टिकुलरली फॉर द लो स्किल्ड वर्कर्स. सो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर हम इम्प्रूव करते हैं तो उसकी वजह से हम उसको कोरिलेट भी कर सकते हैं विद बेटर एजुकेशन, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, इम्प्रूव्ड हेल्थ केयर एक्सेस टू द सिटीजन्स एंड ना कि सिर्फ डिपेंडेंट होना ऑन दी ग्लोबल ट्रेड, बल्कि इंडिया का जो डोमेस्टिक फोकस है वो अर्बनाइजेशन के ऊपर भी है एंड ऑल्सो रिमेनिंग रेजिलिएंट टू दी ग्लोबल इकोनॉमिक शॉक्स एज कम्पेयर टू चाइनाज अर्बन ग्रोथ. चाइना के अर्बन ग्रोथ से कंपेयर करते हैं तो इंडिया का जो पोटेंशियल है फॉर सस्टेन डोमेस्टिक एंड कंजम्पशन एंड डिमांड ग्रोथ वो ज्यादा है कंपैरेटिवली.
तो अर्बनाइजेशन और जो हाउसिंग सेक्टर है वो एक मल्टीप्लायर इफेक्ट की तरह काम करता है, जैसा कि यहाँ पे बताया गया है, जॉब्स क्रिएट करने में, स्पेसिफिकली इन द कंस्ट्रक्शन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। साथ ही साथ जो एंड प्रोडक्ट होगा दैट इज इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ, अर्बन लिविंग स्टैंडर्ड्स उनको भी इम्प्रूव करना, जो कि सोसाइटल एस्पेक्ट को इम्पैक्ट करता है। सो इकोनॉमी ग्रोथ हो रहा है, जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है, एंड साथ ही साथ जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी इम्प्रूव हो रहा है। देन नेक्स्ट, व्हाट हैज द व्हाई आर वी सीइंग द हॉटेस्ट ईयर? 2024 को बोला जा रहा है इट वाज द वार्मेस्ट ईयर इन इंडियन हिस्ट्री। So 2025 is also expected to follow the same trend due to increasing level of global warming. Average annual temperature की बात की जा रही है यहाँ पे। In 2024 it was 0.9 degree Celsius above the long term normal goal which we are seeking. 50% जो इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो रिस्क पे है इन एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की वजह से। जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वेदर है बेसिकली और ज्यादा इरेटिक होते जा रहा है, हीट वेव्स और ज्यादा फ्रीक्वेंट होती जा रही है, रेनफॉल इरेटिक होती जा रही है, इंक्रीज्ड एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, जैसे कि साइक्लोन्स इंडिया के केस में हमने देखा। फूड सिक्योरिटी चैलेंजेस क्रिएट करता है, एग्रीकल्चरल यील्ड को इम्पैक्ट करता है, बेसिक कम्युनिटी जैसे वाटर अवेलेबिलिटी को इम्पैक्ट करता है, एंड ऑल्सो लाइफ स्टॉक हेल्थ पे भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। तो हेल्थ, इकोनॉमी, फूड सिक्योरिटी एंड ऑल्सो द क्वालिटी ऑफ लाइफ सारी चीजें इम्पैक्ट होती हैं, स्ट्रेन भी आते हैं ऑन द इकोनॉमिक रिसोर्सेज। जैसे कि समर्स में हीट वेव्स हैं, वैसे ही विंटर्स में इंटेंसिटी ऑफ कोल्ड वेव्स बढ़ती जा रही हैं, स्पेसिफिकली इन द नॉर्दर्न इंडिया। जनवरी एंड फरवरी में भी देखा जाएगा इन 2025 हीट वेव्स इंटेंसिफाई होने वाली हैं इन द मार्च एंड अप्रैल इन सेवरल रीजन्स। तो क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर प्रमोट करना, क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप वैरायटीज को हम इंट्रोड्यूस करें ताकि फूड सिक्योरिटी के ऊपर जो क्लाइमेट इफेक्ट आता है उसको हम मेंटेन कर पाए। India's agricultural output could also drop by 16% in the next 5 years. तो इस लेवल तक इम्पैक्ट आ सकता है, इसलिए जरूरी हो जाता है राइजिंग टेम्परेचर्स को कॉम्बैट करना, स्पेसिफिकली फॉर एग्रीकल्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना दैट कैन विदस्टैंड दीज एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, जैसे कि मल्टी लेवल साइक्लोन शेल्टर्स हम बनाते हैं, बट क्या हमारा जो अर्बन सिटीज के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अर्थक्वेक प्रोन है? इसके साथ साथ क्या वेदर की वजह से सीमेंट रिलेटेड जो इश्यूज क्रिएट होते हैं कार्बन एमिशन के, क्या उनको हम टैकल कर पा रहे हैं? जो एल्बीडो इफेक्ट है, हीट बबल क्रिएट हो जाता है इन दी अर्बन सिटीज, क्या उसको हम इम्पैक्ट कर पा रहे हैं? ओपन स्पेसेस कितने हमारे पास अवेलेबल हैं, ग्रीन स्पेसेस? सो ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन को कट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसके लिए एनर्जी के अंदर भी रिन्यूएबल एनर्जी को अडॉप्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसके लिए फेम स्कीम भी है। Then next we are talking about DPDP rules, that is Digital Personal Data Protection Act। वो बात कर रही है एक बैलेंस फ्रेमवर्क बनाने की डेटा प्राइवेसी से रिलेटेड एंड प्रोटेक्शन से रिलेटेड इन इंडिया। इंडिविजुअल राइट के ऊपर फोकस किया जा रहा है। सो बोल सकते हैं एक पॉजिटिव स्टेप इसमें लिया गया है ऑन डेटा लोकलाइजेशन, जिसमें जो गवर्नमेंट है इट विल बी अपॉइंटिंग द कमिटीज ऑन दैट विल बी डिसाइडिंग द लोकलाइजेशन रिक्वायरमेंट्स, केस बाय केस डील करेंगे, जो फीडबैक प्रोसेस है उसको और रॉबस्ट बना पाएंगे। साथ ही साथ जो सेंसिटिव डेटा है जैसे कि हेल्थ केयर रिकॉर्ड, इट विल बी रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम लीविंग द कंट्री अनलेस नेसेसरी। चिल्ड्रन प्राइवेसी को लेके भी यहाँ पे कंसर्न्स उठाए गए, पेरेंटल कंसेंट। बट हमने कल देखा भी कि जो पेरेंटल कंसेंट है उसको इम्प्लीमेंट करना काफी ज्यादा चैलेंजिंग हो सकता है, जैसे कि पेरेंटल कंसेंट और बेसिकली कंसेंट के लिए जो टेक्नोलॉजी है वो यूजर के ऊपर ही डिपेंडेंट है। तो अगर हम डेटा ही गलत डाल देंगे देन इट विल नॉट बी एबल टू डिटेक्ट।
तो सेंसिटिव डेटा भी हो सकता है पेरेंटल कंसेंट के थ्रू, तो वो डेटा लीक, डेटा प्राइवेसी को लेके भी इश्यूज क्रिएट करता है। एंड क्या ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इनको मैंडेट किया गया है दैट डेटा ब्रीच नहीं होना चाहिए, एंड इम्प्लीमेंट करना होगा इनको एक मैकेनिज्म ताकि यूजर डेटा ट्रांसपेरेंसी बने रहे, क्या वो सच में इम्प्लीमेंट हो सकता है? तो 2 ईयर ट्रांजिशन पीरियड भी अलाउ किया गया है सारी बिजनेसेस को ताकि वो अपने फ्रेमवर्क को अलाइन कर पाए गोल्स के साथ। बट सेक्टर स्पेसिफिक कंसर्न भी उठाए गए हैं, जैसे कि हो सकता है इन्फोर्समेंट इनकंसिस्टेंट हो, डेटा अकाउंटेबिलिटी को लेके क्वेश्चन उठता है, ना कि सिर्फ पब्लिक सर्वेंट्स के लिए जो कि वीकन कर सकता है गवर्नेंस को भी, बल्कि ऑल्सो फॉर अ रेगुलर सिटीजन। जो डेटा अकाउंटेबिलिटी है उसको भी, उसके ऊपर भी चैलेंजिंग हो सकता है। इसके साथ साथ टाइम कंज्यूमिंग कंसल्टेशन हो सकते हैं फॉर दी बिजनेसेस, तो उनके ऊपर कहीं ना कहीं वो बर्डन इंक्रीज होगा इसकी वजह से। तो सेक्टर स्पेसिफिक जो रूल्स है उनका बेटर इन्फोर्समेंट होना जरूरी है। एंड जो कोर कंसर्न है दैट इज रिलेटेड टू प्राइवेसी प्रोटेक्शन, उसके लिए क्या मेजर्स हम लेंगे ताकि हम इनोवेशन, डिजिटल ग्रोथ एंड प्राइवेसी तीनों को ही मेंटेन कर पाए। सो डेटा गवर्नेंस के लिए एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, बट जो प्राइवेसी राइट्स हैं इंडिविजुअल्स की, उसको टैकल करना विद द लोकलाइज सोल्यूशन प्रोवाइड करना कैन बिकम हेक्टिक एंड बर्डनसम फॉर दी बिजनेसेस ऑल्सो। तो उन चैलेंजेस को हम कैसे डील करेंगे? So that is all for today. Thank you so much everyone for joining Ansarkari. Keep watching and keep learning with us.